جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ میں موسلادھار بارش نے جلتھل ایک کر دیا۔ مختلف علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ بارش کے باعث شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ملتان کے علاقے الطاف ٹاؤن، وحدت کالونی، پل برارہ اور اس کے اطراف کی آبادیوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ مختلف علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ بارش کے باعث شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ملتان کے علاقے الطاف ٹاؤن سے علی ریاض نے، اور وحدت کالونی کی صورتحال سے متعلق ہمیں بتائیں گے گوہر رحمان۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں علی ریاض کا۔ علی بتائے گا شہر کی صورتحال اس وقت کیسی ہے؟ جی بالکل، شہر ملتان کے باسیوں کے لیے رحمت جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ زحمت بن گئی ہے، کیونکہ ملتان سے گرد و نما میں جو بارش برسنے کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مختلف علاقوں کی سڑکیں جو ہیں وہ تالاب اور جوہڑوں کا سب منظر پیش کر رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر بارش اس طرح برستی رہی تو ملتان کے باسیوں کے لیے یہ کافی جو ہے پریشانی کا سبب بنے گی۔ میں سے موجود ہوں ملتان کے علاقے الطاف ٹاؤن میں، اور یہاں پر بھی جو مناظر ہیں کچھ اسی طرح کے ہی ہیں کہ بارش کے بعد جو چونکہ بارش ابھی ہو بھی رہی ہے کہیں کہیں علاقوں میں، تو اس کی وجہ سے یہاں پر پانی کھڑا ہوا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہاں پر جو علاقہ مکین ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ دوسری جانب جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی بارش کے پانی کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ یہاں پر شہری علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جانتے ہو کیا کہنا چاہیں گے، کیا کہیں گے کہ ہر بار ایسے بارش کی وجہ سے پانی کھڑا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے جیسے اب دیکھیں پانی ابھی آپ کے سامنے ایک بندہ گرا ہے ٹرک کی وجہ سے، نمازی آتے ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہے، اتنی گندگی ہے، بڑی اتنی بڑی کوٹھیاں ہیں، لیکن پھر بھی ان کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر گلیوں میں سڑکوں میں پانی کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی کے ساتھ جو شہری ہیں ان کو بھی یہاں سے گزرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو سڑکوں پر پانی کھڑا ہے یہ جو واسطہ ہے ان کی کارکردگی پر ایک بڑا سوال نشان ہے، کیونکہ جیسے ہی بارش برسی ہے تو سڑکیں جو ہیں وہ تالابوں اور جوڑوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ جی علی ریاض ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ رخ کرتے ہیں گوہر رحمان کا۔ گوہر بتائے گا آپ یہاں پر کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، جس طرح سے علی ریاض نے بتایا ہے کہ شہر کی جو سڑکیں ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ اس وقت ہم ملتان کے علاقے وحدت کالونی میں موجود ہے، جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو چکا ہے۔ صبح جو ہلکی بارش شروع ہوئی تھی، وقفے سے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ کل تک چلتا رہے گا، لیکن ملتان کے شہریوں کے لیے بارش جو ہے زحمت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جس طرح کراچی میں اربن فلڈنگ ہوئی ہے، وہی خطرہ اب ملتان کے شہریوں کو بھی جو ہے اس تشویش لاحق ہو چکی ہے کہ یہاں پر بھی اربن فلڈنگ نہ ہو جائے، کیونکہ کالے بادل چھائے ہوئے مسلسل بارش ہو رہی ہے صبح سے، جس کے باعث پانی جمع ہو چکا ہے وحدت کالونی کا۔ میرا کیمرامین آپ کو دکھائے گا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی صورتحال ہے، تھوڑی سی بارش رکی ہے تو یہاں پر اتنا پانی جمع ہو چکا ہے۔ اگر یہ بارش کا سلسلہ محکمہ موسمیات نے جس طرح سے کہا ہے کہ ایک مونسون کا بڑا ہی سٹرونگ سپیل جو ہے وہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں داخل ہوا ہے، اسی طرح سے اگر بارش ہوتی رہی تو اربن فلڈنگ کے حوالے سے شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وحدت کالونی ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے گا کیا کہیں گے؟ ہر بار بارش آتی ہے یہی کہانی ہوتی ہے، واسا کو کمپلینس بھی کی ہیں، تو کتنی مشکل ہو رہی ہے؟ یہاں کمپلین تو کئی مرتبہ کی گئی ہے اور بارش ہوتی ہے تو تباہی مچ جاتی ہے، پانی بے بہا کھڑا ہوتا ہے، کاروبار خراب ہو جاتا ہے، لوگ دکانداری نہیں کر سکتے، نمازی پرہیزی آدمی یہاں سے گزر نہیں سکتا، بچے یہاں سے گزر نہیں سکتے۔ ابھی آپ کا کیمرہ دکھا رہا ہوگا لوگوں کو کیا تکلیف ہے یہاں سے گزرتے ہوئے۔ وہاں واسا والوں نے کھڈا مارا ہوا، تقریباً 8 سے 9 فٹ کا ایک کھڈا پڑا ہوا تھا، اس کی کھدائی کے لیے پیپ ڈالے گئے، اب تقریباً 25-30 فٹ کی کھدائی ہوئی ہے اور پانی ابھی بھی 8 سے 9 فٹ کھڑا ہے۔ ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے نہ کوئی گزر سکتا ہے، نہ کوئی سنوائی کرنے والا ہے، نہ MNA سننے والا ہے، نہ MPA سننے والا ہے۔ سر جی بالکل، دیکھیں یہ وحدت کالونی کے جو مکین ہیں انہیں بارشوں کے باعث ہر بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس بار جو مونسون کا ایک سٹرونگ سپیل جو داخل ہوا ہے ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں، ان لوگوں کو بھی تشویش لاحق ہو چکی ہے کہ کراچی کی طرح یہاں بھی اربن فلڈنگ نہ ہو جائے،
लेकिन वासा की जानिब से अभी तक कोई मशीनरी नहीं आई है। जो कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की जानिब से कहा गया था कि मुल्तान शहर के हॉटस्पॉट एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए वासा की कारकर्दगी। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। गौहर रहमान, आप वहदत कॉलोनी मुल्तान से हमें तफसीलात बता रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है बिलाल न्याजी ने। जो बिलाल, तफसीलात बताइएगा। शहर उलिया में मौसम की बात करें तो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। हम इस वक्त MDA पुल बराड़ा रोड पर मौजूद हैं और मेरे कैमरा में दिखा सकता है कि इस वक्त रोड पर पानी जमा होना शुरू हो गया और ये अभी तक सिर्फ आधे घंटे की बारिश के बाद ये सिचुएशन है। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है, अगर उस हवाले से बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो उस हवाले से यहाँ पर जो पानी है, ये जो रोड है मुकम्मल तौर से पानी से भर जाता है और इस हवाले से शहरियों को अभी से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बताएगा, जहाँ पे जब बारिश होती है हम भी देख रहे हैं पानी जमा होना शुरू हो गया है, क्या सिचुएशन होती है? सर, यहाँ पे पानी भर जाता है, सारा दिन पानी रहता है। अब जैसे बारिश आपके सामने आ रही है, वक्फे से बारिश आ रही है, पानी यहाँ पे अभी सारा रोड भर जाएगा। मुश्किलात है, परेशानी होती है आवाम को, हर बंदा टेंशन में है। बिल्कुल, हर आदमी टेंशन में, हर शहर टेंशन में। उस हवाले से यही कहा जाए, जैसे आप देख रहे हैं कि लोग बारिश में किस तरह से यहाँ से गुजर के आ रहे हैं और ये सारा सिलसिला जारी है। और बारिश का सिलसिला जारी है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बिलाल न्यासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां पर सुबह से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, बताएगा डेरा गाजी खान में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? शहर डीजी खान में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है जारी है। हल्की बूंदाबांदी से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी जो है वो भी जमा होना शुरू हो चुका है। इस टाइम हम रेलवे रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी मेरा कैमरामैन रिहान अली दिखा सके तो ये बारिश का जो पानी है ये इस मेन रोड पर जमा हो रहा है, जिसके बाद जो गुजरने वाले राहगीर हैं, जो शहरी हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खसूसी तौर के ऊपर जो लोग मोटरसाइकिल पर सवार हैं, जो लोग पैदल जाते हैं यहाँ से, उन तमाम के तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। महकमा मौसमियात की जानब से शाम तक मजीद भी बारिशों की पेशगोई की गई है। मजीद बारिशें होती हैं तो मजीद सूरत हाल खराब होगी। इस टाइम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो अमला है वो हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन शहरी मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को भी बारिश का सिलसिला जारी है, सड़कों पर पानी जमा है। आशिर इशफाक, आप डेरा गाजी खान से तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में मुसलसल 4 घंटे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मुसलसल बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है, जबकि नशेबी इलाके पानी में डूब गए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला गायब है। शहरियों का जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में मुसलसल 4 घंटे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। रहीमिया खान शहर और गिरदो नवाह में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम सुहाना हो गया है। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताएगा शहरी किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल रहीमिया खान शहर और गिरदनवा में सुबह सवेरे से आसमान पर बादलों का बसेरा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश भी वक्फे से हो रही है, जिसके बाद रहीमिया खान का मौसम है वो इस वक्त औसम बन चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और रहीमिया खान के जो शहरी गर्मी के साथ आए हुए हैं उनके चेहरे खुशी से निहाल है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ठंडा मौसम है रहीमिया खान में, इस तरह का सुहाना मौसम कभी कभार ही देखने को मिलता है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल ऐसी है। मौसम आज जो है बहुत उम्दा बना हुआ है, बहुत अच्छा जो बना हुआ है। बच्चे भी बहुत खुश हैं आज, और इनको क्योंकि घर बैठे हुए थे तो बच्चों ने इसरार किया कहीं घूमना चाहिए, तो मौसम जैसे बहुत ही खुशगवार बना हुआ था। हम बच्चों को लेके घूमने के लिए निकले हुए हैं। खाने के हवाले से क्या प्लानिंग की है? सर, खाने के हवाले से अभी तो यही है कि पकौड़े और चाय, इसके बाद जो बिरयानी जो है वो खाई जाएगी। बच्चों को जो है, ये मेरा बेटा है, इसको बहुत पसंद है बिरयानी, तो यही है। चाय, इस मौसम में चाय और पकोड़े बहुत मजा देते हैं। बच्चों के चेहरों पे जो खुशी है वो इस वक्त दीदनी है और इनका ये कहना है कि मौसम इसी तरह से आइंदा 24 घंटों में रहेगा। रहीमिया खान में भी बारिश का सिलसिला जारी है। आमिर भट्टी, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे फोर्ट अब्बास का, जहां फोर्ट अब्बास और गिरदनवाह में सुरमई गहरे बादलों का राज बरकरार है और बूंदाबांदी होने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं नोमान सईद।
बिल्कुल फोर्ट अब्बास के मौसम की बात करें तो फोर्ट अब्बास में जो है सुबह सवेरे से ही जो है सुरमई कलर के गहरे से बादलों का राज है और सुबह सवेरे से जो है कहीं हल्की और कहीं तेज जो है वो बारिश हो रही है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर जो है गहरे से बादलों का राज है। अगर बारिश की बात करें तो महकमा मौसमियात ने भी मजीद जो है बारिशों की पेशगोई कर दी है। यहाँ पर जो है शहरी हजरात जो है वो इंतहाई खुश नजर आ रहे हैं, मौसम की इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है। जी भाई बताइएगा, मौसम जो इंतहाई खुशगवार हो गया है, अब किस तरह मौसम को इंजॉय कर रहे हैं? जी मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। बारिश होने की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया और गर्मी का जोर टूट गया है। और हम बच्चों को लेकर पार्किंग आए हैं, लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं और मौसम इस वक्त बहुत ही खुशगवार हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, शहरी हजरात जो है वो खुशी का इजहार कर रहे थे। इनका कहना है कि फोर्ट अब्बास शहर और इसके मुज़ाफ़ात का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। और इसके अलावा जो है महकमा मौसमियात वालों ने भी मजीद जो है वो बारिश की नवीद सुनाई है। इसके साथ साथ जो है मौसम खुशगवार है। नौमान सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं शहर और गिरदनवाह में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। फ्लडिंग का भी खतरा है। वासा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि डिस्पोजल स्टेशन डिविजन में हंगामी हालत का ऐलान भी किया गया। डिस्पोजल स्टेशन के अफसरान को निकासी आपके हवाले से हिदायत जारी की गई है। मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। रजा बताएगा मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं वासा को? जी बिल्कुल, मॉनसून सीजन की जो बारिशें हैं वो उनका सिलसिला जारी है और मुल्तान में भी अभी भी सुबह से बारिश हो रही है और रवां हफ्ते में मजीद 2 दिन जो है वो भारी बारिशों की तवक्को का जो इम्कान है वो जाहिर किया जा रहा है कि मुल्तान में जो है वो मजीद बारिशें होंगी। और इसी तरीके से आइंदा हफ्ते में भी जो है वो 2 दिन बारिशें मुतवक्के हैं। अर्बन फ्लडिंग, क्योंकि दरिया में तो इस वक्त जो है वो फ्लड की तैयारी की सूरत हाल मौजूद है और पानी जो है वो नशेबी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जबकि बारिश के बाद जो अर्बन फ्लडिंग है इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग डायरेक्टर वासा। जी मुश्ताक खान साहब, अर्बन फ्लडिंग, बारिशें, क्या तैयारियां हैं वासा की, या बस यहाँ भी बाकी शहरों की तरह पानी घरों में दाखिल हो जाएगा? वासा जो है ये मानसून के सीजन के हवाले से मैं अर्ज कर दूं कि हम पूरी तरह तैयार हैं। उसकी 2 बारिशें, 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं अर्बन फ्लडिंग के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले दिनों बारिश हुई है तो हमने तकरीबन मोर दैन 50 मिलीमीटर हुई है। तो हमने रात मतलब शाम को हुई है तो हमने रात जो है ना जी 2 बजे तक तमाम पानी जो था ना जी वो हमने क्लियर कर दिया था। तमाम रोड्स क्लियर थी और सुबह लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई। अब भी इंशाल्लाह हम रेडी हैं। जो ही बारिश होती है मैंने अपने अमले, हमारा अमला वो रेड अलर्ट है, वो तमाम डिस्पोजल स्टेशन जो है ना फुली वर्किंग, फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होगा। जिन इलाकों में ग्राउंड फेलियर्स हुए हैं और मुतबादिल इंतजाम किया गया है वासा की तरफ से निकासी आपके लिए, तो उन इलाकों में बिलखुसूस जो नशेबी इलाके हैं, जो मुमताज़ाबाद और खूनी बुर्ज के अतराफ की आबादियां हैं, दिल्ली गेट जो, तो वहाँ पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो उसके वाले से क्या लाएमल होगा? सर हमने उसके लिए भी जो है ना हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए होते हैं। जहाँ ग्राउंड फेलियर होता है हम फौरी तौर पर वहाँ अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लेते हैं और बल्कि उधर भी जो है ना हम पूरा फोकस करके हम ना पानी नशेबी इलाकों से जल्द निकाल देते हैं। जी बिल्कुल, लाहे अमल जो है वो तैयार है, ऑपरेशनल स्टाफ रेड अलर्ट पे है, मशीनरी तैयार है, डिस्पोजल अफसरान को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रजा मलिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं डीजी खान में कमिश्नर साजिद जफरडाल ने डीसी डीजी ताहिर फारूक के हमरा फ्लड सूरत हाल में वडोर नहर और नाले का दौरा किया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। एडीसी समीउल्लाह फारूक, असिस्टेंट कमिश्नर मलिक राशिद नेमत भी अफसरान के हमरा थे। अफसरान ने पहाड़ों से नाले में आने वाले रेल पर ब्रीफिंग ली। तो आपको बता रहे हैं डीजी खान में कमिश्नर साजिद जफरडाल ने डीसी डीजी खान ताहिर फारूक के हमरा फ्लड सूरत हाल में वडोर नहर और नाले का दौरा किया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा भी लिया। एडीसीआर समीउल्लाह फारूक, असिस्टेंट कमिश्नर मलिक राशिद नेमत भी अफसरान के हमरा। अफसरान ने पहाड़ों से नाले में आने वाले रेले पर ब्रीफिंग दी है। मुल्तान शहर का मौसम खुशगवार हो गया। सुबह से जारी हल्की हल्की बारिश से गर्मी का जोर भी टूट गया है। शहरी इस मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ये बता रही हैं अलिशबा आसिफ और सुहेरा तारिक।
जी बिल्कुल, शहर ओलिया में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। मैं और मेरी साथी रिपोर्टर सुहीरा तारिक भी हम लोग आज किले पे आए हैं। यहाँ पे जहाँ शहरी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। पहले शहरियों से बात कर लेते हैं कि वो मौसम कैसे इंजॉय कर रहे हैं, फिर सुहीरा से पूछेंगे कि आगे महकमा मौसमियात के मुताबिक आगे ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कब तक बारिश का जो है इम्कान है। जी आप बताइएगा कैसे एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? मौसम एंजॉय करने आए हैं कि मौसम अच्छा है, घूमने फिरने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। घर बैठे थे, बोर थे, यहाँ एंजॉय करने वगैरह आए हैं। चलो अच्छा है, मौसम खुशगवार हो गया है। घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, यहाँ एंजॉय करने आए। जी बिल्कुल, क्योंकि मुल्तान में जो है गर्मी भी बहुत होती है, तो जब मौसम अच्छा होता है तो शहरी जो है बाहर आ जाते हैं। अब सुहीरा से जान लेते हैं, क्योंकि बारिश सुबह से जारी है, वक्फे वक्फे से हो रही है, कभी बूंदाबांदी और कभी एकदम तेज बारिश शुरू हो जाती है। तो बात कर लेते हैं। सुहीरा, मुझे बताइएगा कि क्या बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, कब तक जारी रहेगा और क्या नुकसानात हमें उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि सिंध में भी ज्यादा बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी अलिशबा, बिल्कुल जैसा कि सुबह से आज मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो गया है। इस वक्त भी देखें हवा चल रही है, आपका भी चेहरा जो है वो खिला हुआ है काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि काफ़ी दिनों से गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी और अब सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। माहिरीन मौसमियात से जब हमने अपडेट ली है तो उन्होंने यही बताया है कि बारिश आज दिन भर बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। शाम के औकात में बारिश जो है वो तेज़ भी हो सकती है। अभी तक सुबह से 10 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। कल का दिन भी बारिश जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक, और ये वाला पूरा हफ्ता जो है वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि आप कह रही थी कि सिंध में चूंकि बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही जो है वो हो चुकी है और सिंध जो है वो पूरे का पूरा कराची जो है वो डूब चुका है। दुआ है कि मुल्तान में इस तरह की सिचुएशन जो है वो ना देखनी पड़े। अच्छा, इंतजामिया तो करेगी इकदाम, हमें शहरियों को क्या करने की ज़रूरत है, आप क्या समझती हैं? शहरियों को भी अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए इसमें, चूंकि जब बारिश होती है तो वासा की तो कारकर्दगी एक तरफ है, लेकिन शहरियों को खुद भी ध्यान रखना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए ताकि जो सीवरेज लाइनें हैं वो ब्लॉक ना हो और पानी का बहाव जो है वो हो सके। तो इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है, तो एंजॉय कर रहे हैं काफी ज्यादा। जी बिल्कुल, जहां मौसम अच्छा है एंजॉय कर रहे हैं, शहरी एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ नुमाइंदा रुही अलिशबा आसिफ और सुहेरा तारिक हमें तफसीलात भी बता रही थी और मौसम भी एंजॉय कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डीजी खान में एक तरफ बारिश तो दूसरी जानिब शहरियों का समोसों पकौड़ों की दुकानों पर रश बढ़ गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे इकबाल सादिक से। इकबाल, बताएगा शहरी मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, मौसम की मुनासबत से डेरा गाजी खान के जो शहरी हैं वो भी खानों के बहुत शौकीन हैं। जैसा मौसम होता है उसी तरह के ये खाने पसंद करते हैं। आज मौसम ने अपना मूड बदला तो यहाँ पर जो शहरी हैं, जो यहाँ के आम जवान हैं, उन्होंने भी खानों के हवाले से अपना मूड बदल और रुख किया है। उन्होंने यहाँ पर जो समोसे पकौड़ों की दुकानें हैं वहाँ पर, तो आज यहाँ पर इस तरह जिस तरह रश नजर आ रहा है, पहले इतना रश नहीं होता लेकिन आज यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है। तो यहाँ पर मछली भी जो है उसको तला जा रहा है, समोसे पकौड़े मौजूद हैं। फिर ये आगे वो जो यहाँ पर बड़े शौक से बेसन वाली मिर्चें खाई जाती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। पहले तो मुझे आप बताएं कितना को एंजॉय करें। इकबाल सादिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बताएं, पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, मुख्तलिफ दूध बरदार गाड़ियों में 1810 लीटर दूध की चेकिंग, 750 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। जबकि राजनपुर में SSS फार्म्स दूध कलेक्शन एरिया में गंदगी पाए जाने पर 30,000 जुर्माना आयद किया गया। मजीद 298 लीटर सोडा वाटर, 170 लीटर मिलावटी दूध, 120 किलो केचप, 34 किलो मिठाई, 1450 साशे गुटखा और दीगर गैर मियारी खुराक मौके पर तल्फ कर दी गई। मुल्तान में फहीम सोडा वाटर ब्रिक्स लेवल कम होने, अलमक्का किराना गुटखा फरोशी पर सबब मोहर, रहीमिया खान में अब्बास एंड वकास किराना गुटखा फरोशी, अल फैसल बेकर्स लाइसेंस फीस की अदम अदायगी पर सील। जबकि मुजफ्फरगढ़ में दिलशाद ड्रिंक कॉर्नर गुटखा फरोख्त करने पर सरबमोहर किया गए। आपको बता रहे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की गई हैं। मुख्तलिफ दूध बरदार गाड़ियों में 1810 लीटर दूध की चेकिंग की गई, 750 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। जबकि राजनपुर में SSS फार्म्स दूध को कलेक्शन एरिया में गंदगी पाए जाने पर
30,000 जुर्माना आयद किया गया है। मजीद 298 लीटर दूध और सोडा वाटर, 170 लीटर मिलावटी दूध, 120 किलो केचप, 34 किलो मिठाई और 1,450 साशे गुटखा और दीगर गैर मियारी खुराक मौके पर तल्फ कर दी गई। हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लिए सेक्रेटरी तैनात कर दिए। मोहम्मद अजमल भट्टी सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तैनात। राना उबैदुल्ला अनवर को सेक्रेटरी खजाना जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट लगा दिया गया। शुएब इकबाल सेहत सेक्रेटरी PND जनूबी पंजाब तैनात किए गए हैं, जबकि राजा खुरम शहजाद अनवर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए। लियाकत अली सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तैनात। साकिब अली को सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट लगा दिया गया। आफ्ताब अहमद पीरजादा सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब तैनात। नौशीन मलिक को सेक्रेटरी सर्विसेज जनूबी पंजाब लगा दिया गया। मोमिन आगा को सेक्रेटरी दाखिला जनूबी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नजीर अहमद गंजाना को सेक्रेटरी कानून जनूबी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। तो आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लिए सेक्रेटरी तैनात कर दिए। मोहम्मद अजमल भट्टी सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तैनात। राना उबैदुल्ला अनवर को सेक्रेटरी खजाना जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट लगा दिया गया। शुएब इकबाल सैयद सेक्रेटरी PND जनूबी पंजाब तैनात। राजा खुरम शहजाद अनवर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब तैनात। लियाकत अली सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तैनात। साकिब अली को सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट लगा दिया गया। आफ्ताब अहमद पीरजादा सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब तैनात। नौशीन मलिक को सेक्रेटरी सर्विसेज जनूबी पंजाब लगा दिया गया। मोमिन आगा को सेक्रेटरी दाखिला जनूबी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नजीर अहमद को सेक्रेटरी कानून जनूबी पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। आपको बताएं, बहावलपुर शहर में अब होंगे धंग के रंग। PHA कंक्रीट फुटपाथ पर धंग फेम पर कंक्रीट गमले लगाने का फैसला। PHA के पास फंडिंग न होने के बाद मकामी स्पॉन्सरशिप से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावलपुर शहर में उतरेंगे अब धनक के रंग। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। आज भी बहावलपुर में बारिश हुई और बारिश के बाद खासतौर पर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं हमारे, वो बड़े निखर से गए हैं। मगर वो जगह जो कंक्रीट के डिवाइडर बने हुए हैं और वहाँ पर किसी किस्म की खूबसूरती नहीं थी, वो शहर में कुछ हद तक बदनुमा दिखाई देते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को फिल करने के लिए PHA ने एक नया प्लान किया है कि वहाँ पर प्लांटर्स लगाए जाएंगे, जो कि वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर रखे जाएंगे और शहर की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। इस हवाले से PHA की जो चेयरपर्सन है हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, ये जो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं आप प्लांटर्स का, तो इसके ऊपर फंडिंग आपके पास कितनी है और ये कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे? ऐसा है जी कि जो हम ये प्लांटर लगा रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज और जो मेडिकल स्टोर्स हैं उसके सामने वाला जो टर्न है उस पे हम लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी टफ टाइल लगी हुई है मीडियन पे, तो हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि हम वहाँ पे प्लांटेशन कर सकें। और वो एक थोड़ा सा जो रफ लुक आता है उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने प्लांटर्स तैयार किए हैं, कम से कम 200 के करीब वो प्लांटर्स हैं और हम उसको थीम दे रहे हैं रेनबो कलर्स की। रेनबो कलर्स में हम उनको पेंट करेंगे और इंशाल्लाह उनको लगाएंगे और उसमें बहुत अच्छे पौधे लगाएंगे ताकि वो सरसब्ज भी लुक दे और एक नीट लुक भी दे। PHA के बारे में जब भी बात की जाती है तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि फंडिंग नहीं है, तो इनके लिए आपके पास फंडिंग है या स्पॉन्सरशिप है? अच्छा, ऐसा है कि फंडिंग बाकी एक लिहाज से तो नहीं है, लेकिन इस वक्त DG साहब अपनी काबशों के ज़रिए से कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं, कुछ मैं अपनी जो मेरी अपने ताल्लुकदार हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इस तरह हम ये प्लांटर्स तैयार करा रहे हैं। लोकल स्पॉन्सरशिप को इस्तेमाल किया जा रहा है और प्लांटर्स को तैयार किया जाएगा ताकि शहर की वो जगह जो कि कुछ रफ लुक्स देती हैं उनको बेहतर किया जाए और बहावलपुर शहर खूबसूरती के लिहाज से पंजाब शहर को सरसब्ज बनाएंगे। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में MNA मलिक अहमद हुसैन ढेहर की वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर अहमद एजाज मसूद से मुलाकात। वाइस चांसलर ने MNA मलिक अहमद हुसैन ढेहर को निश्तर के जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी ने कैंसर वार्ड के मंसूबे के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर MNA मलिक अहमद हुसैन ढेहर ने जल्द फंड्स की मंजूरी की यकीन दहानी करवाई। आपको बता रहे हैं, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में MNA मलिक अहमद हुसैन ढेहर की वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर अहमद एजाज मसूद से मुलाकात।
बहावलपुर में पोलियो केसेस के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि रवां साल पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अतर लाशारी से। अतर बताएगा इस हवाले से। वैसे कि भावलपुर में पोलियो केसेस के हवाले से बात करें तो कुछ र्यूमर्स भी चल रही हैं कि अगस्त में कुछ पोलियो का कोई केस जो है वो शायद रिपोर्ट हुआ है। उसी हवाले से बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रिवेंटिव प्रोग्राम डॉक्टर जाकिर अली मेरे साथ मौजूद हैं। जाकिर भाई, पोलियो केसेस की क्या सिचुएशन है, क्या बताएंगे? ये सुबह से मुझे भी कोई सोशल मीडिया से फ़ोन आए हैं तो र्यूमर है कि जी भावलपुर में केस पॉजिटिव आया है, लेकिन अभी तक हमें मुसद्दका रिपोर्ट कोई नहीं मिली, क्योंकि हमें फ़ोन आता है ईओसी कोऑर्डिनेटर का या हमें लैब से रिजल्ट आता है। अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं हुआ कि कोई केस भावलपुर में पॉजिटिव है। तो इस साल जो हमारे 87 जो केसेस फालिज वाले, क्योंकि फालिज वाले केसेस में से पोलियो का केस मिलेगा तो वो हुए हैं, जिनमें से तकरीबन काफ़ी के रिजल्ट आ चुके हैं, 5-6 के पेंडिंग हैं, वो उनके रिजल्ट आने बाकी हैं। अभी तक हमें इस किस्म की कोई इतला नहीं है कि यहाँ पे कोई केस पॉजिटिव है। और पिछले साल भी हमारे केसेस आते हैं फालिज वाले केस, क्योंकि उन्हीं को हम ढूंढते हैं। अगर फालिज के केस हम कम तलाश करें तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है, कि जो भी फालिज वाला होगा उसको हम लाजमी नोटिफाई करेंगे। जो भी फालिज वाला केस है, इस दफा भी 87 केसेस जो हैं वो भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पोलियो का पॉजिटिव केस जो है ऑफिशियल पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अतर लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एमएनए लिया न्याज झकड़ा और एमपीए रफाकत गिलानी की साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सेठ असलम के घर आमद। मेंबरान असम्बली ने सेठ असलम के घर शहरियों से मुलाकात की। शहरियों ने अपने मसाइल बारे मेंबरान असम्बली मलिक न्याज और रफाकत गिलानी को आगाह किया। एमपी रफाकत गिलानी का कहना था कि लिया बाईपास से टूट फूट का शिकार रोड की जल्द मरम्मत मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि लिया को डिवीजन बनवाने के लिए कोशिशें जारी हैं। न्याज झक्कड़ ने बताया कि लिया समेत नशेबी इलाकों की नई सड़कों के काम को मुकम्मल कर दिया है। दौरे के दौरान साबिक चेयरमैन एमसी लिया, हाफिज जमील अहमद, सीओ एमएस वलीद उस्मान और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के मौके पर मुल्तान में मिसाली रवादारी, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए एहतराम की रिवायत बरकरार रही। इसी बारे में मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। रजा बताएगा। बिल्कुल मिसाली इंतजामात के बायस मुहर्रमुल हराम और आशूरा जो है वो बखैर खूबी जो है वो गुजर गया। और इस हवाले से जो ज़िला इंतजामिया की तरफ से रवां बरस जो एक मिसाली लंगर का भी एहतमाम किया गया था। 17,000 से ज़ायद अज़ादारों और मोमिनीन में जो है वो लंगर तकसीम किया गया, जिसमें पानी की बोतलें और दीगर अशिया भी शामिल थीं, उनमें तकसीम किया गया। इस तमाम तफसीलात के हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक सर। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बखैर खूबी जो है वो मुहर्रमुल हराम आशूरा गुजर गया। क्या इंतजामात रहे और इसमें मुंतज़मीन और जो अज़ादार हैं उनका किस हद तक ताउन रहा? सबसे पहले तो मैं मुल्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है जितने डिपार्टमेंट्स हैं हमारे उनके साथ। उसके बाद जितने हमारे लाइसेंस होल्डर्स थे, अहले तशी के जितने हमारे नोटेबल्स हैं, फिर हमारे पीस कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, अहले सुन्नत के जितने नोटेबल्स हैं, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सब ने बड़ा ताउन किया। और मुल्तान की जो ट्रेडिशन है उसके हवाले से हम इस चीज़ को इंश्योर करने में कामयाब हो गए कि उसी ट्रेडिशन को हमने बरकरार रखा। और स्पेशल मैं अप्रिशिएट करूँगा जितने डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, स्पेशली वासा के और मैप को भी काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। सॉलिड वेस्ट ने बड़ा अच्छा काम किया। सिविल डिफेंस के हमारे रज़ाकारों ने इंतहाई अच्छा काम किया। बाकी जितने डिपार्टमेंट्स थे, हेल्थ डिपार्टमेंट, जितने भी जिन की ड्यूटी लगी हुई थी, सब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मैं सबको अप्रिशिएट करूँगा। पर कंट्रोल रूम में हमारा जो स्टाफ था, कंट्रोल रूम बड़ा अच्छा इन्होंने मैनेज किया। उसमें हमारे जितने भी CCTV कैमराज लगे हुए थे उसके थ्रू हमने मॉनिटरिंग की। इसके अलावा जितने भी हमारे बाकी इदारे हैं, पाक फौज के जवान थे, रेंजर्स के थे, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस ने बहुत अच्छा, ट्रैफिक ने, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सबको मैं अप्रिशिएट करूँगा, मुल्तान के अवाम की तरफ से इनको अप्रिशिएट करूँगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस दफ़ा भी पिछले साल की तरह हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मुल्तान के जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो मुखिया हज़रात हैं, उनके ताउन से हमने अज़ादारों में लंगर भी तकसीम किया। जो इंटर सेक्ट हारमनी है उसको प्रमोट करने की हमने अपनी तरफ से कोशिश की और बड़ा उसको अप्रिशिएट भी किया गया है। जी बिल्कुल, जो रिवायत है मुहर्रम पुरान गुजरा है। नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लोधरा में असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ का मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। बीमार जानवर का गोश्त फरोख्त करने वाला कस्साब पकड़ लिया। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। मुश्ताक बताएगा।
اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف کی جانب سے مضر صحت گوشت فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، کریک ڈاؤن جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اسسٹنٹ کمشنر مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہیں جہاں پر مضر صحت گوشت ملتا ہے، اس کو تلف کرایا جا رہا ہے۔ مزید میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ آپ نے مقدمہ بھی درج کروایا، مزید آپ شہریوں کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ جی، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک میری یہ درخواست بھی ہے جو لودھراں کے رہائشی ہیں ان سے کہ کہیں پہ بھی وہ جائیں گوشت خریدنے کے لیے، سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ کیا گوشت کے اوپر لائف سٹاک جو ان کا ڈاکٹر ہوتا ہے، ویٹرنری ڈاکٹر، اس کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر سٹیمپ لگی ہے تو پھر صرف اس حالت کے اندر گوشت خریدیں۔ اگر سٹیمپ نہیں لگی ہوئی تو فوراً وہ ہمارے دفتر کے اندر، میرے سرکاری اور دفتر کے نمبر کے اوپر رابطہ کر لیں یا پرسنل نمبر پر رابطہ کر کے انفارم کر دیں۔ اور اگر انہیں کہیں پہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ گوشت کو ذبح کر رہے ہیں سلاٹر ہاؤس کے علاوہ کہیں پہ گھر میں کر رہے ہیں یا کہیں بھی اور کر رہے ہیں، وہ بھی انفارم کریں۔ اور اگر گوشت کی حالت انہیں تشویشناک لگ رہی ہے پھر بھی وہ ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اور ہم بذات خود بھی نکل کے جہاں پہ بھی گوشت وغیرہ اس طرح کا نظر آ رہا ہے یا مل رہا ہے اس کے اگینسٹ ہم کارروائی کر رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ FIR دی جائے گی۔ تھینک یو۔ جی بالکل، محکمہ لائف سٹاک اور پنجاب فوڈ اتھارٹی سے مل کر اسسٹنٹ کمشنر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ایک مردہ بیل جو کہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مظفر گڑھ کے علاقے جتوئی میں بچے سے بدفعلی کی کوشش کا معاملہ رکن صوبہ اسمبلی مومنہ وحید نے پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مظفر گڑھ کے علاقے جتوئی میں بچے سے بدفعلی کی کوشش کا معاملہ رکن صوبہ اسمبلی مومنہ وحید نے پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع کروا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کے دفتر میں جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے 31 پولیس افسران اور اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ملتان سے 2 انسپیکٹر اور 4 کانسٹیبل بھی ایڈیشنل IG کے دفتر میں تعینات ہونے والوں میں شامل۔ ایڈیشنل IG کے دفتر میں تعینات ہونے والوں میں انسپیکٹر طاہر اعجاز اور انسپیکٹر رضوان خان شامل ہیں۔ کانسٹیبل انیس رسول اور کانسٹیبل محمد ممتاز بھی ایڈیشنل IG کے آفس میں تعینات۔ کانسٹیبل اعجاز حسین اور سمیع اللہ بطور ڈرائیور ایڈیشنل IG آفس تعینات کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کے آفس میں تعینات ہونے والے اہلکاروں میں بہاولپور، DG خان، مظفر گڑھ سمیت دیگر اضلاع کے ملازمین بھی شامل ہیں۔ رحیمیہ خان کے ڈپٹی کمشنر آفس میں ضلع بھر کی 4 تحصیلوں کے ٹائیگر فورس رضاکاروں میں ٹائیگر فورس کارڈز تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد اور ڈسٹرکٹ ہیڈ گڈ گورننس رانا مسعود مجید خان رضاکاروں میں کارڈز تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں عامر بھٹی۔ کہ DC آفس میں ڈپٹی کمشنر علی شہزاد اور ڈسٹرکٹ ہیڈ گڈ گورننس رانا مسعود مجید خان نے جو ضلع بھر کی 4 تحصیلوں کے جو ٹائیگر فورس کے رضاکار ہیں انہیں کارڈز دیے ہیں۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں سب سے پہلے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد سے، سر کیا کہنا چاہیں گے ٹائیگر فورس کے رضاکار جو ہیں کس طرح سے اب اپنے فرائض سر انجام دیں؟ جی، ٹائیگر فورس ایک بڑی ہی ہماری کارآمد فورس آہستہ آہستہ بنتی جا رہی ہے، جو ہم کسی بھی جگہ پر چاہے وہ پرائس چیکنگ ہو، چاہے وہ محرم کی ڈیوٹیز ہوں، کرونا ڈیوٹیز ہوں، وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ بچے ٹرین ہوتے جا رہے ہیں، اور اب چونکہ ایک ان کی طرف سے آئیڈینٹی کا ایشو آ رہا تھا تو ہم نے آج انہیں ID کارڈ بھی ایشو کیے ہیں۔ یہ پہلی کھیپ ہے، انشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی جو ریگولر ہیں اپنی ڈیوٹیز میں، جو ٹائیگرز وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں، انہیں باقیوں کو بھی کارڈز ملیں گے انشاءاللہ تعالی، اینڈ دس ول ہیلپ دیم اسٹیبلش دیئر آئیڈینٹی، اور جہاں پہ بھی وہ جو بھی والنٹیئر ورک کرتے ہیں اس میں ان کے لیے آسانی ہوگی۔ رانا مسعود مجید صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ آج ایک اور مائل سٹون ہے انشاءاللہ ٹائیگر فورس کی ایڈونٹ میں، اور ود اتھارٹی کمز رسپانسبلٹی، یہ ایک اور سٹیپ ہے، اور ٹائیگر فورس انشاءاللہ اپنے آپ کو ذمہ دار ثابت کرے گی، اور اس کا سب سے پہلا قدم انشاءاللہ ڈسپلن ہوگا۔ اور جیسے ڈی صاحب نے فرمایا کہ اب ہم بڑے اچھے طریقے سے لاگ اور ریکارڈ کر رہے ہیں، اور لوگوں کی کمٹمنٹ کی بنا پہ اس
प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे और ये एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड फोर्स बनती जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, रजाकारों को यहाँ पे सहूलियात दी जा रही है और तवक्कुआत भी की जा रही है कि फील्ड में जाके बेहतर से बेहतर तरीके से टाइगर फोर्स के कार्ड्स तकसीम के आमिर भट्टिया आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। लिया से जहां कोट सुल्तान में मकान की दीवार राह चलते बच्चे पर आ गिरी, दीवार के नीचे दबकर जाहिद नामी बच्चा शदीद जख्मी हो गया। मोहल्ला मोहम्मदिया कोट सुल्तान के करीब गली से गुजरने के दौरान 10 साला जाहिद पर मकान की दीवार गिर गई। जख्मी बच्चे को तहसील अस्पताल कोट सुल्तान से DHQ अस्पताल लिया मुंतकिल कर दिया गया है। लिया से आपको बता रहे हैं, कोट सुल्तान में मकान की दीवार राह चलते बच्चे पर आ गिरी, दीवार के नीचे दबकर जाहिद नामी बच्चा शदीद जख्मी हो गया। मोहल्ला मोहम्मदिया कोट सुल्तान के करीब गली से गुजरने के दौरान 10 साला जाहिद पर मकान की दीवार गिर गई। और शुजाबाद में 15 मिनट की बारिश से इलाका नदी का मंजर पेश करने लगा है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मुसव्विर अंसारी। शुजाबाद के एक इलाके के अंदर मौजूद है जहां पर घुटनों घुटने तक पानी आया हुआ और इस हवाले से इधर के जो इलाका मकीन है वो हमारे साथ मौजूद है। अभी थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई है शुजाबाद में और ये एक बहुत बड़ा सैलाब का मंजर पेश कर रहा है पूरी गली के अंदर। एंड तक ये बारिश का पानी देखा जा सकता है। मेरा कैमरामैन आपको वो भी दिखाएगा। इस हवाले से हमारे साथ जो शहरी मौजूद है हम उनसे बात करते हैं, ये क्या मसला है जी? सर, यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट बारिश हुई है और यहाँ इस रोड के ऊपर ये मेन स्ट्रीट है शहर की। यहाँ पे सवा 2 महीने मजालिस अज़ा का सिस्टम होता है। यहाँ पे 15 मिनट की बारिश है, ये पूरा रोड जो है पानी से भर गया है और जो है ना बल्दिया वालों के नाकिस हिकमत अमली की वजह से इस टाइम ये पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पे आगे ड्रेन सिस्टम है, उसको बंद कर दिया गया, रोड ऊंचा कर दिया गया, जिसकी वजह से पानी यहाँ पे रुक गया। वरना यहाँ पे 10 से 15 ये ड्रेन सिस्टम जो आप कह रहे हैं कि रोड ऊंचा कर दिया, ये कब हुआ है ये सिस्टम? ये मुहर्रम के दिनों में जिस तरह जो इंतजामिया काम करती है, वर्क करती है। वरना ये क्या कहते हैं इसका रोड पहले ये नीचे था, यहाँ पे पानी नहीं रुकता था। अब जो है वो रोड ऊंचा होने की वजह से ये अब जो है ना ये पानी रुकने लग गया और वापस बैक कर रहा है पानी यहाँ पे। अब घरों में भी पानी भरा हुआ है आगे और जिसकी वजह से ना अंदर काफी नुकसान हो चुका है। जी बिल्कुल, ये बता रहे कि ठेकेदार की नकद इलाका नदी का मंजर पेश करने लगा है। मुसव्विर अंसारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नजर जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की हिदायत पर दरियाई इलाकों में रहने वालों को इनखला की वार्निंग दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर का तमाम मुतल्लिका महकमों को फ्लड बंद पर कैंप लगाने का हुक्म। आमिर खट्टर की तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को तैयारियां खुद मॉनिटर करने की हिदायत। आपको बता रहे हैं, मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नजर जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। सखी सरवर और कबायली इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में होने वाली मुसलसल बारिशों की वजह से राखी गाज नीली मिट्टी के मकाम पर ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही अली मूसा रजा। जी बिल्कुल, सखी सरवर और ट्राइबल एरिया में होने वाली बारिशों की वजह से जो है छोटे बड़े नदी नालों के आने का भी इम्कान है। बाज़ कबायली इलाकों में छोटे बड़े जो बरसाती नदी नाले हैं वो बह निकले हैं। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज में होने वाली बारिशों की वजह से रोड पर फिसलन और कीचड़ की वजह से ट्रैफिक के आमदोरफ्त में गाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। मुसाफिर भी परेशानी, क्योंकि फिसलन की वजह से गाड़ियां जो है ऊपर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से मशीनरी जो है गाड़ियों को ऊपर क्रॉस कराती है कुछ एरियाज पर। तो सखी सरवर का भी बरसाती नाला जो है आया तो है, मगर अभी उसकी मिकदार बहुत ही पानी की कम है। अगर बारिश मजीद ट्राइबल एरिया के पहाड़ों पर होती है तो मजीद बरसाती नाले भी जो है आ सकते हैं। अभी तक भी सखी सरवर और कबायली इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से कबायली इलाकों के बाद रास्ते जो हैं वो मनकत हो गए, क्योंकि छोटे बड़े नदी नालों के आने के बाद जो कबायली आवाम है वो अपने घरों को वापस नहीं जा सकती हैं। मौसम तो इंतहाई खुशगवार है, गर्मी का जोर भी टूट गया है, मगर ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। अली मूसा रजा आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से 31 अगस्त को भट्टे बंद करने के नोटिस जारी होने पर भट्टा मालिकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुकूमत से मजीद वक्त देने का मुतालिबा कर दिया। मजीद बात करेंगे काशिफ चौधरी से, काशिफ बताएगा। हुकूमत की जानब से भट्टों को 31 अगस्त से बंद करने के नोटिस जारी होने के बाद जो है वो भट्टा मालिकान ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इसमें मेरे साथ गोगो मंडी के जो प्रेसिडेंट है भट्टा यूनियन के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या खदशात हैं आपको इस नोटिस के हवाले से? जी हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि 31 अगस्त से आपके जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे जो भट्टे चल रहे हैं वो बंद किए जाएं।
देखें अभी जो सूरत हाल चल रही है इसमें फिलहाल हम ये स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि हम एकदम पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी पे आ जाएं, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारा ज़र मुबादला चाहिए, बहुत सारा सरमाया चाहिए, जो कि इस वक्त जो मुल्क में कोरोना की एक सूरत हाल चल रही है उसमें ये मुमकिन नहीं है। दूसरा हमें यह है कि कोई गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई मॉडल भट्टा हमें नहीं बना के दिया कि जिससे हमें पता चले कि नए जो टेक्नोलॉजी वाले भट्टे हैं वो किस तरह काम करते हैं और उनमें क्या अफादियत है उनकी, क्योंकि जिन लोगों ने अपने तौर पे नए भट्टे बनाए हैं वो कामयाब नहीं हो सके, उनको कोई खातिर खा उसमें वो रिजल्ट नहीं मिल सका, जिसकी वजह से हर भट्टे वाला इस चीज़ से डर रहा है। गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम 20-20 लाख रुपया आपको जो है वो लोन बिला सूद जो है वो कर्ज देंगे, मगर उसकी भी कोई भी जामे हिकमत अमली अभी तक नहीं बनाई गई, वो भी नहीं मिल रहे। अब हम जी अब आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपके मुतालबात हैं, अगर पूरे नहीं होते तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? देखें जी, हमारा अगला लाहे अमल यही होगा कि अगर गवर्नमेंट हमारे मुतालबात नहीं मानती तो हम भी जल्द से जुलूस निकालेंगे, हम सड़कों पे आएंगे और अपने मुतालबात को मनवाने के लिए जो बन पड़ता है वो करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना, उनका यही कहना है कि अगर मज़ीद वक्त देने का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान पुलिस डिपार्टमेंट में रिटायर्ड मुलाजमीन के एहसास में तकरीब मुनाकिद हुई। डीपीओ डेरा गाजी खान अख्तर फारूक ने रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को हार पहनाकर और गुलदस्ते देकर रवाना किया। रिटायर्ड मुलाजमीन में सब इंस्पेक्टर जुल्फिकार अहमद, ASI मोहम्मद हनीफ, कांस्टेबल्स में से इनायतुल्लाह, एजाज अहमद और अली नवाज शामिल हैं। आपको बता रहे हैं डेरा गाजी खान पुलिस डिपार्टमेंट में रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। डीपीओ डेरा गाजी खान अख्तर फारूक ने रिटायर होने वाले मुलाजमीन को हार पहनाकर और गुलदस्ते देकर के रवाना किया। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।